Hello friends, so now we'll be talking about the next topic. Yesterday we did with the topic of some beginning points, that was like defining and the non-defining characteristics. Then we have done the biodiversity. Now we will proceed with the next topic today, that is known as classification. Now why do we need to study classification? Because we are applying classification in day-to-day life. We know that even if you were right now in the class, so I would have classified you on the basis of, like, let us make a group of girls and boys. So what is that? That is what we are doing, is classification. We classify animals on the basis of like whether they are mammals, whether they are birds, whether they are reptiles. So classification is something, a basic thing to study any species. Species is any animal. If you want to study that, classification is the basic thing. So now let us understand, what do you mean by classification? So ideally, what is classification? Classification is grouping into convenient categories. We group something into convenient categories, means what? Suitable categories. That is what you call it as classification. As I gave you an example, I can classify our classroom, if we were present together, into boys and girls. We can classify the classroom into someone who has brought more than 90%, 80%, 70%, so that it goes convenient. Or I can group a class into on the basis of their roll numbers. So basically, what is classification? Classification is to categorize something into some convenient groups, like convenient category. That is what you call it as classification. Now, if we talk about classification, it is generally, we do it in two ways. When it comes to biology, it is done in two different ways. So the first is known as taxonomy and the second one is known as the systematics. Now what do you mean by taxonomy? Taxonomy means what? Scientific study of taxon. Remember, scientific study of taxon is known as taxonomy. Now what do you mean by taxon? Taxon is a kind of scientific category. किसी भी एक कैटेगरी को, जैसे मैंने बोला कि हम आइडेंटिफाई किसी एक क्लास को क्लासिफाई करते हैं बॉयज और गर्ल्स में, तो अगर मैं बॉयज कहूंगी तो वो क्या हो गया? बॉयज एक टैक्सोन हो गया और उसके अंदर जितने भी जितने भी व्हाट वी कैन से इंडिविजुअल्स आए हैं वो एक उसका ग्रुप बन गया. सो टैक्सोन क्या है? एक कैटेगरी है कि गर्ल्स, इट इज अ कैटेगरी. तो you can say that taxon is what? Categories, and उस कैटेगरी को हम साइंटिफिक नेम से हम क्या कहते हैं? वो taxon है. हम आगे जब पढ़ेंगे, आपको पता है हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो क्या है? वो एक टैक्सोन है, वो एक कैटेगरी है. मतलब टैक्सोन आप हर एक ग्रुप को अप्लाई कर सकते हो. आप किसी भी चीज को अगर ग्रुप कर रहे हो, उसका जो लेबल लगा रहे हो, उसको जो टॉपिक दे रहे हो, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे टैक्सोन. ओके, तो आगे बढ़ता है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ टैक्सोन. टैक्सोन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रुप, साइंटिफिक कैटेगरी, उसको हम कहते हैं टैक्सोन. ओके, अब वो क्या चीज है उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है? व्हाट डज टैक्सोनॉमी इंक्लूड? सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन. जैसे कि हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करने से पहले व्हाट डू वी डू? वी कैरेक्टराइज देम. उसके कैरेक्टर को हम डीपली स्टडी कर लेते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टैक्सोनॉमी इज व्हाट? कैरेक्टराइजेशन. Let's move to the second step. Second step is what? Identification. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे लोटस को स्टडी करना है तो लोटस को मैं कैरेक्टराइज करूंगी, जैसे कि वो कहाँ देखने मिलता है, उसके लीफ कैसे हैं, उसके लीफ पे वैक्सी लेयर होता है, उसकी स्टेम होलो होती है. मतलब आई विल कैरेक्टराइज. उसको पहले मैंने कैरेक्टराइज किया, फिर बाद में मैंने उसको क्या किया? आइडेंटिफाई किया. भाई ये तो लोटस है. या तो फिर इट इज फाउंड इन अ वाटर हैबिटेट, तो मैं कह सकती हूँ कि ये हाइड्रोफाइट्स है. फिर हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, फिर उसको मैं क्लासिफाई करूंगी कि इस तरीके से भाई मैंने उसको इस ग्रुप में हाइड्रोफाइट्स में डाला हुआ है. देन इट कम्स टू नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक नेमिंग, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं.
सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज नोमेनक्लेचर। या तो फिर हम उसे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करेंगे, जैसे कि मैंने अभी मैंगो को यहाँ पे क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया, फिर क्लासिफाई किया और नोमेनक्लेट किया, सॉरी कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया और नोमेनक्लेचर किया। और नोमेनक्लेचर में मैंने उसका नाम क्या रखा? आई हैव नेम्ड इट एज मेंजीफेरा इंडिका व्हिच इज अ साइंटिफिक नेम, राइट, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सोन होता है, टैक्सोन का मतलब ग्रुप होता है, और वो किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम टैक्सोनॉमी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास कि वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, उसके दो नाम होने चाहिए, जैसे कि एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिस नेम होता है, फिर होना चाहिए कि भाई वो अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए, तो फिर उसको इटैलिक्स में टाइप किया हुआ होना चाहिए। सो वी हैव डन ऑल दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन द प्रीवियस लेक्चर। सो दिस इज अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोन मीन्स अ कैटेगरी, उसको साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सिस्टमैटिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है किसी भी साइंटिफिक कैटेगरी को, किसी भी टैक्सोन को अगर हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, शॉर्ट में समझाती हूँ, सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। उसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। उसके अंदर क्या होता है? सिस्टमा। व्हाट डज इट मीन बाय सिस्टमा? सिस्टमा इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Now let us take an example of humans. हम जानते हैं कि humans are the highly evolved animals, which you know हम उसको किसमें क्लासिफाई करते हैं? Chordates, chordates से vertebrates, vertebrates से mammals, mammals से primates और primates से family हम कहते हैं hominidae, hominidae से homo sapiens। तो ये जो मैंने पूरा उसका क्लासिफिकेशन किया कि फैमिली, डिवीजन, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फिर चले तो क्लास के बाद आया फैमिली आया, फैमिली के बाद में जीनस आया, जीनस के बाद स्पीशीज आया। तो ये जो सब हम उसे सिस्टमैटिकली अरेंज जो करते हैं उसके इवोल्यूशन के बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स इज अ क्लासिफिकेशन व्हिच इज इंक्लूडिंग, फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी, second point it includes evolutionary relationship, and third point is it includes ecological role. तो systematics क्या हुआ? Systematics जैसे मैंने I have given you an example right now कि अगर हम humans को classify करते हैं तो उसके हम evolution के point of view से जाएं कि एनिमल किंगडम में वो कहाँ है, फिर उसका फाइलम कहाँ है, फिर उसका वर्टिगेन से उसका क्लास कहाँ है, उसका ऑर्डर कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, और उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीशीज क्या है। तो हमने उसको इवोल्यूशन से शुरू करके लास्ट तक क्लासिफाई किया और उसे हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज सिस्टमैटिक्स। नाउ व्हाट डज इट इंक्लूड्स? सो सिस्टमैटिक इंक्लूड्स मेनली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये भी वही चीजें इंक्लूड करता है जो टैक्सोनॉमी इंक्लूड करता है। सो टैक्सोनॉमी में हमने क्या स्टडी किया था? वी हैव स्टडीड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। Whereas when you talk about systematics, उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। Remember that systematics includes टैक्सोनॉमी, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में हम किसी भी चीज को ग्रुप करेंगे, किसी भी चीज को एक कैटेगरी में डालेंगे। तो यस, सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी है, लेकिन टैक्सोनॉमी में सिस्टमैटिक्स नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक रैंडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम ना ही उसे इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, या ना ही हम उसे इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। हम उसे किसके हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं? एक रैंडम क्लासिफिकेशन के, भाई ऐसे ऐसे करके हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? द मेन पॉइंट दैट इज इंक्लूडेड ओवर हियर is this evolutionary relationship. So whenever you classify something on the basis of its evolutionary relationship into groups, into taxon, we call it as systematics. Remember. So और उसके अंदर दूसरा क्या आ जाता है? उसके अंदर आ जाता है उसका इकोलॉजिकल रोल। So what is ecological role?
इकोसिस्टम में उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है. Like if you take an example of a plant, we know that the role is being a producer. If you take the example of the second thing, let's talk about humans. So we know that humans are heterotrophs, we are depending upon others, so we can say we eat everything. So we are omnivores. So that is our ecological role. So remember that taxonomy is a systematics is a systematic classification that includes taxonomy, evolutionary relationship and ecological role. और ये systematics का description किसने दिया? So this systematics description was given by Carolus Linnaeus in one of his publications called Systema Naturae. So systematics किसने दिया था? Systematics was given by Carolus Linnaeus. Remember this. And in one of his publication called Systema Naturae, and he is also known as the father of taxonomy. So this is all about, you can say, taxonomy and systematics. Now we start with the next topic, and the topic is of hierarchy of classification and taxonomic categories. So what is mean by hierarchy? First of all, let us understand. So let us understand from this concept. We know that when we classify something, we put it into certain categories. So what are those categories? If we talk about this, it is known as kingdom, phylum or division. Next is class, order, family, genus and species. So what is this? This is a categories for classification. So we can say that this is a category 1, then it goes to category 2, category 3, category 4, category 5, category 6 and category 7. So these are the categories, or you can say that a rank. Okay. So when we talk about categories, what we can say? We can define these categories as it is a taxon or a rank in a particular classification system. Like suppose if I am classifying this as something, what is this kingdom? Kingdom is the first rank or the first category of classification. So you can call it as a rank or a taxon. And suppose if I study systematically this kingdom, okay, if I study scientifically this kingdom, it is known as taxonomy. What do you call it as? Taxonomy. As I told you कि taxonomy systematics में आ जाती है. What you can say, ये systematics में taxonomy आ जाएगी, लेकिन taxonomy में systematics नहीं आएगा, क्योंकि taxonomy एक random classification हम करते हैं on the basis of observable characteristic. अगर आप किसी चीज को observe कर रहे हो और उसको classify कर रहे हो तो उसको आप taxonomy कहोगे, लेकिन अगर आप किसी चीज को उसकी ranking system के उसके evolutionary basis पे अगर आप classify कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे? Systematics. So what is this? This is systematics. ये जो है ये पूरा इवोल्यूशन के बेसिस पे, जैसे कि अगर मैंने बोला कि आई वांट टू स्टडी द स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इफ आई एम स्टडीइंग द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एनिमल में कहां से किस क्लास से बिलोंग करके ऑर्डर फैमिली कैसे पूरा इवॉल्व हुआ है वो हम स्टडी कर सकते हैं सिस्टमैटिक्स में. तो ये जो है वो सिस्टमैटिक्स है, और सिस्टमैटिक्स की ये जो अरेंजमेंट है, रैंकिंग सिस्टम है, इसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की. रिमेंबर, सो व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की? द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अगर हम इसको ये सारी कैटेगरीज को सिस्टमैटिक्स में या अच्छी तरीके से अगर हम अरेंज करते हैं उसको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, तो हम उसे कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की. व्हाट डू वी कॉल इट एज? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की. अब और इसकी हर एक यूनिट्स को या हर एक रैंक को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज अ रैंक और अ टैक्सॉन. सो इंडिविजुअली ये सब क्या है? ये टैक्सॉन है या तो फिर रैंक है, और सब मिला के क्या है? तो इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल हिरार्की. वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, that whether you take anything, whether you take plant or animals, किसी का भी kingdom की हम बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको कहां पे दिखने मिलेंगे?
So you will find maximum number of organisms in kingdom. So you will find maximum number of organisms. सबसे ज्यादा organisms आपको कहाँ देखने मिलेंगे? You will find it in the kingdom. And सबसे कम number of living organisms कौन से taxon में देखने मिलेंगे? You will find it in the, what we can say, in the species. So it is minimum number of organisms. So sometimes the question is asked, okay, like as you go in a taxonomic category, as you go from bottom to top, the number increases, and as you go from top to bottom, what is happening? The number decreases. ठीक है, नंबर कैसे हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर हम शुरुआत में बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप मोस्ट कैटेगरी दैट इज नोन एज किंगडम, तो आई एम टॉकिंग लेट्स से किंगडम प्लांट. मतलब क्या? सारे ही प्लांट्स, दुनिया के जितने भी प्लांट्स है वो सब इस किंगडम में आ गए. सो एज आई हैव टोल्ड यू, किंगडम में हम सबसे ज्यादा इंक्लूड करते हैं नंबर्स को. तो सबसे मैक्सिमम नंबर्स आर ऑब्जर्व्ड इन किंगडम, बिकॉज सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट किंगडम प्लांट, तो दुनिया के सारे प्लांट्स उसमें इंक्लूडेड हो गए. अब हम जैसे ही नीचे आते हैं, लाइक फाइलम को क्रॉस करके क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज पे. So as we come to species, what is happening? Species में हम किसी भी एक ही organism की बात करते हैं. Not all the organism, not all the plants, not all the animals. So when it comes to species, we are going to talk about only one living organism. तो यहाँ पे number कैसे हो जाएंगे? Decrease हो जाएंगे. Here the number would be maximum. Here the number would be least, minimum. Now the next point, important point we are going to talk about is similarity. तो when we talk about similarity मतलब कितने सेम चीजें या सेम हमें कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, या फिर जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो सेम कैरेक्टर्स हम कहाँ, किस ग्रुप में डालेंगे. तो अगर when we are talking about kingdom, we will find least similarity, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे जो सब सिमिलर नहीं होंगे. तो सिमिलरिटी ऊपर आपको कम देखने मिलेगी, और जैसे ही आप स्पीशीज पे जाओगे, स्पीशीज पे एक ही स्पीशीज की बात करेंगे तो हमें मैक्सिमम सिमिलरिटी देखने मिलेंगी, मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेंगे. सो सिमिलरिटी की बात करें तो similarity is maximum in species, whereas minimum in kingdom. Remember this. So kingdom में हमें सबसे कम similarity देखने मिलेंगी और species में हमें सबसे ज्यादा similarity देखने मिलेंगी. इसमें से हम एक और बात को डिस्कस करते हैं, variations. Now what do you mean by variations? Variations का मतलब क्या होता है? Variations का मतलब होता है differences, which is exactly opposite to similarity. So if the question is asked in the context of differences, like if you go from kingdom to species, differences क्या होंगे? Increase होंगे या decrease होंगे? The differences will decrease because the similarity increases. तो species में similarity increase होती है, variation decrease होते हैं. नेक्स्ट अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में डिफरेंसेस, वेरिएशंस इंक्रीज, मैक्सिमम होते हैं, और वी कैन से दैट सिमिलैरिटी कैसी होती है? मिनिमम होती है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्यू पॉइंट्स इन दिस टॉपिक. वंस अगेन आई से किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. ये क्या है? ये है सिस्टमैटिक्स. इसे हम टेक्सोनॉमिकल हिरार्की भी कहते हैं. And each of this is known as a rank or a category. As you go to the higher rank, the similarity will decrease, the variation will increase. As you go to species, the similarity will increase and the variations will decrease. The number is maximum in kingdom, the number is minimum in the species. So this is all about the hierarchical classification, or we can say the taxonomic categories.